Hello students, today we are going to start the new definition which are found by the mirror, just like as pole, center of curvature, radius of curvature, principal axis, aperture, as well as the radius of curvature, main focus. What are the main focus, pole, aperture, radius of curvature and center of curvature in mirror? As you have studied, spherical mirror is two types. Which one? Concave mirror and convex mirror. Concave mirror, the mirror which has inward reflecting surface and outward polished surface. This is the polished surface. And this one is reflecting surface. So it is concave mirror. Now there are some words which we have to define. Pole, principal axis, center of curvature, radius of curvature, aperture, main focus and focal length. We have to define these words by the mirror. So sometimes the question may comes in the final exam 5 marks, in which there are 5 words are given which you have to define. What is pole? First, pole. It is the center of the mirror. Mirror का जो center है, this is the mirror. Mirror का जो center point है, mid point है, this is called pole and it is represented by the P. This is the center of the mirror. Or you can see that it is the midpoint of the mirror. Through the ray of light passes state, जहाँ से ray of light बिना किसी रिफ्रैक्शन के स्टेट पास हो जाती है. Through the ray of light passes state, it is denoted by, it represents by P. The midpoint or center of the mirror is called pole. Through the ray of light passes state, it is denoted by P. So this one is the midpoint, denoted by P, pole. The next one is aperture of the mirror. What is aperture of the mirror? It is the size of the mirror. Mirror का जो size है, mirror हमने जो करो लगाई, ये करो हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है ना. तो this one is M and N. तो distance from M to N is called aperture. क्या लिख सकते हैं? It is the size of the mirror. मिरर के साइज को आप क्या कह सकते हैं? अपर्चर कह सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. You know that spherical mirror is a part of sphere. Spherical mirror एक sphere का part है और sphere का part है this has a center.
जब आप स्फीयर का बनाते स्फेरिकल पार्ट बनाते हैं उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा. दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय C. The spherical mirror is the part of a sphere. This sphere has a center. क्योंकि स्फेरिकल मिरर एक सेंटर है. स्फेरिकल मिरर जो है एक स्फीयर का पार्ट है और स्फीयर का कौन कोई सेंटर होता है. इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज डिनोटेड बाय C. Although it is not the part of spherical mirror. देखिए बेटा, वैसे स्फेरिकल स्फीयर का पार्ट था इसलिए सेंटर है. मिरर में इसका कोई रोल नहीं. देयर इज नो रोल, देयर इज नो आप इंपॉर्टेंस कह सकते हैं ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. कॉनकेव मिरर में फ्रंट में होता है, कॉन्वेक्स मिरर की ये बैक पार्ट. क्लियर. अब हमारे C से P यानी प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis, a line passes through C to P. स्ट्रेट एक लाइन जो C से P तक स्ट्रेट पास आउट होती है. दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ए लाइन फ्रॉम C to P passes straight. This line is called principal axis. याद रखिए बेटा, एक लाइन passes through C to P straight. मैंने लाइन कहा है, डिस्टेंस नहीं कहा है, क्योंकि C से P के बीच की डिस्टेंस कुछ अलग नाम से जानी जाती है. A line passes through C to P straight, that is called principal axis. The next one is radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature, the distance from C to P. हाँ देखिए बेटा, principal axis, a line which passes C to P straight, that is called principal axis. Radius of curvature, the distance from C to P. This distance is called radius of curvature and it is denoted by R. The distance between C to P is called radius of curvature. It is denoted by R. Is that clear? It means C से P के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसके बाद आता है मेन फोकस. मेन फोकस या ओनली फोकस भी कह सकते हैं. द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस. The point at the principal axis after the reflection the ray of light passes. प्रिंसिपल एक्स के ऊपर वो पॉइंट जहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के पश्चात गुजरती है, पास आउट होती है, उस पॉइंट के बोलते हैं एफ फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस through the ray of light passes.
it is denoted by f, कैपिटल F, नॉट स्मॉल f, क्योंकि स्मॉल f फोकल लेंथ हो जाएगा। क्लियर? एक तो चीज ये। दूसरा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन f एंड r? f और r में भी रिलेशनशिप होता है। आप इस प्रकार भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज f और r में क्या रिलेशनशिप होता है? r इज इक्वल टू ऑलवेज 2f। r स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मींस डिस्टेंस फ्रॉम c टू p। f क्या है? r हमारा f का डबल है, इसका मतलब c और p का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा? इज दैट क्लियर? क्योंकि r और f में क्या रिलेशनशिप है? r इज इक्वल टू 2f, या हम ये भी कह सकते हैं f इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं बेटा? r इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू r बाई 2। इट मींस फोकस जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ लोकेटेड होगा? एट द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल। एंड द लास्ट डेफिनेशन इज फोकल लेंथ। अब जितने भी मिरर में डिस्टेंस मेजरमेंट की जाती है, चाहे ऑब्जेक्ट की करनी है, चाहे फोकस की करनी है, चाहे मेरी इमेज की करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर काउंट करनी है, टोटल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन मिरर थ्रू द पोल। जितने भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे मिरर के अंदर, कहां से करेंगे? पोल से करेंगे। जैसे हमने P से C के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ क्या है? P से F के बीच की डिस्टेंस, फोकल लेंथ यानी फोकस तक की दूरी, यही ना बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन P to F is called focal length. It is denoted by small f. It is denoted by capital F। क्या? फोकस तो कैपिटल F और फोकल लेंथ हमारी स्मॉल f के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात सुन रहे? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? पोल क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? मेन फोकस किसे कहते हैं? फोकल लेंथ किसे कहते हैं? क्लियर?